Hello, my dear friends. Welcome again into the one more session of the chapter number third. Okay, so let's start today's session. Today we are going to discuss about the EMF. Okay, what is the EMF of the battery? As you know that the potential difference is provided by generally by the battery, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा बैटरी से प्रोवाइड किया जाता है. एंड इंडिविजुअल सेल और इलेक्ट्रिकल सेल ऑल द बैटरी have its own EMF. Okay, so first we are going to understand what would be the EMF. The full form of the EMF is electromotive force. Moreover, we are also going to discuss about the internal resistance of the battery, and we are deriving the relation between the potential difference, EMF and internal resistance. Okay, if you have any battery, it have its own potential like 2 volt, 3 volt, 10 volt, 100 volt, 500 volt. Okay, that is the potential difference of the battery. Okay, actually when the battery or the electrical cell has been prepared at that time, because of the chemical reaction it has something else energy, but some energy is lost. Okay, when the battery is prepared, and the charges having the potential equivalent to the energy which is provided when the chemical reaction has been taken out, but something energy or some potential has been lost while they reached to the its own electrode. यानी कि जब भी बैटरी को बनाई जाती है तब केमिकल रिएक्शन की वजह से उसके चार्जेस को जितनी एनर्जी मिलती है उस एनर्जी में से कुछ एनर्जी खर्च करने के बाद ही वे इलेक्ट्रॉन यानी कि वो सारे इलेक्ट्रॉन अपने अपने इलेक्ट्रोड पर पहुंचते हैं. ओके, सो amount of the energy which is supplied to the charges at the beginning, that is not exactly equals to the amount of the energy when the charges reach to their electrodes. Okay, so where the energy has been lost, answer is to work against the internal resistance. यानी कि बैटरी का जो internal resistance है उसमें से पास आउट होने में वो एनर्जी खर्च हो गई, और उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस खुद के इलेक्ट्रोड पर पहुंच गए, अब जो उसके पास एनर्जी बची वो बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, और जो इनिशियल एनर्जी उसके पास थी वो कहा जाता है EMF. ओके, सो मैंने पार्शियली आपको समझा दिया है कि EMF क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है. अब उसे हम एग्जाम्पल के साथ लेकर शुरू करते हैं. ठीक है, ओके, सो पहले एक फिगर ले लेते हैं. एज शोन इन द फिगर, द ग्लास वेसल और एंड द इलेक्ट्रोलाइट इज फील्ड. देखिए ये ग्लास की वेसल है और उसके अंदर क्या है, 2 इलेक्ट्रोड्स हैं. ओके, P जो इंडिकेट किया गया है यहाँ पे वो पॉजिटिव टर्मिनल है, और N जो इंडिकेट किया गया है वो नेगेटिव टर्मिनल है या नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ऐसा कह सकते हो आप. बट ऑब्वियस द डायरेक्शन ऑफ द फ्लोइंग ऑफ करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. दिस इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. ये क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, और इसको जोड़ने के बाद ही करंट फ्लो होता है. मान लेते हो कि कनेक्शन नहीं है, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल है, but the current is not flowing until and unless the external resistance or any conducting device is not attached between 2 terminal of the battery. Okay, चलिए, तो जनरली सिंबलाइज कैसे किया जाता है आपको पता है कि
ये रेजिस्टेंस है और उसके साथ एक बैटरी का सिंबल यहाँ पे मैंने इंडिकेट किया है। ओके और आपको पता है आप जो बड़ा एंड है वहां पे पॉजिटिव टर्मिनल शो करते हो और छोटा एंड है वहां पर नेगेटिव टर्मिनल शो करते हो, एंड दिस इज द सिंबल ऑफ बैटरी। ठीक है, ये क्या है? बैटरी का सिंबल है। और जब भी कोई रेजिस्टेंस या कंडक्टिंग डिवाइस कनेक्ट किया जाता है तभी करंट फ्लो होता है, और करंट फ्लो की डायरेक्शन एज यू नो दैट इट इज इंडिकेटेड फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। क्लियर है? ओके चलिए शुरू करते हैं कि in this electrolyte two electrodes are partially dipped. One electron is positive, that is indicated by the P as I told you, and the second electrolyte is negative. Okay, sorry यहाँ पे electrode होना चाहिए and second electrolyte is negative N है, बराबर? yes, हल्की सी printing mistake है। One electrode is positive, that is P, and that is electrolyte, and second electrode is negative N. Okay, simply you can describe in your own words also. Okay, the electrodes are dipped in electrolyte and they can exchange the charges. Okay, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट है और एक साइड आपके पास कॉपर का और दूसरी साइड जिंक का। ओके तो ZnSO4 प्रोड्यूस होता है और they can exchange the ions. Simple. Okay, so electrodes are dipped in electrolyte, so they can exchange the ions or charges with the electrodes. Okay, and the chemical reaction has been taken out. ठीक है? Okay. अब क्या कहते हैं कि potential difference between electrode A and electrolyte. देखिए यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि ये A जो है वो इलेक्ट्रोलाइट के आसपास की कोई पोजीशन है और ये इलेक्ट्रोड के पास यहाँ पे पॉइंट ए है। ठीक है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट भरा गया है उन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है? पॉजिटिव है, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड ए एंड इलेक्ट्रोलाइट दैट इज V प्लस, एंड V प्लस इज ग्रेटर देन 0. Okay, and the potential difference between electrolyte and negative electrode, यानी electrolyte और जो B टर्मिनल है या B इलेक्ट्रोड है, okay, उन दोनों का potential difference हम नेगेटिव लेंगे, so that is indicated by V minus and V minus is less than 0. ठीक है, partially पता चल रहा है ना? Okay, when the current is not flowing, यानी कि जब ये रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं किया गया है, ओपन सर्किट है या फिर कोई भी चीज नहीं जोड़ी गई है, तब की बात हो रही है। सो कुछ नहीं जोड़ा है तो करंट फ्लो नहीं होगा। ओके, सो व्हेन द करंट इज नॉट फ्लोइंग इन द सर्किट, ओके, द पोटेंशियल ड्रिफ्ट बिटवीन पॉइंट P एंड N, पोटेंशियल डिफरेंस P और N के बीच में क्या होगा? दैट इज सिंपल, V प्लस माइनस ऑफ माइनस V माइनस। ठीक है, यानी कि VA माइनस VB, सिंपल आप ऐसा कह सकते हो। ओके, यानी कि VP माइनस VN। ओके, देखिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे, पार्शियल आप लिख कैसे सकते हो? VP माइनस VN। ओके, VP का पोटेंशियल कितना है? V प्लस, हमने अभी डिराइव किया है। ओके, माइनस N पॉइंट का क्या है? नेगेटिव है, सो दैट इज V माइनस। ओके, चलिए, सो तो potential difference between V plus and V minus is called electromotive force. ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन सीधे सीधी दे दी है डायरेक्टली। potential difference between positive terminal and negative terminal, okay, simply that is so called the electromotive force, the capacity of the providing energy to the charges by the battery or by the electrodes, that is called electromotive force of the cell, and it is indicated by, किससे इंडिकेट किया जाता है? देख सकते हो आप, एप्सिलॉन जैसा सिंबल है। ओके, एप्सिलॉन से इंडिकेट किया
जाता है. ओके, सो E is equals to epsilon is equals to, that is EMF, V plus plus V minus, just we have seen, आगे ही देखा हमने, and that is greater than 0. ओके, क्यों? हमने पॉजिटिव टर्मिनल को ज़्यादा और नेगेटिव टर्मिनल को पार्शियल थोड़ा सा उससे कम पोटेंशियल डिफरेंस पे लिया है, और टोटल वैल्यू एडिशन है तो वहाँ पे नेगेटिव आने का कोई सवाल नहीं होता है. सो EMF of this battery is greater than 0. That is this equation number 1. Okay, so definition यहाँ पे है, when the unit positive charge moves from negative to positive terminal of cell due to the non-electric force, okay, then the energy gained by the charge is called EMF of the cell. अब यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन परफेक्टली नहीं दी गई है, ठीक है. चले, कोई इशू नहीं, आपको बता देता हूँ पार्शियली, हल्की सी एक फिगर भी ड्रॉ कर देता हूँ जिससे आपको पता भी चल जाए. चलिए, जैसे कि हमें पता है कि ये एक इलेक्ट्रोड है, दूसरा इलेक्ट्रोड यहाँ पर है. ओके, अब पॉजिटिव नेगेटिव. ओके, अब मान लेते हो कि कोई भी प्रोसेस यहाँ पर हो रही है और इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव आयंस जनरेट हो रहे हैं और पॉजिटिव आयंस भी जनरेट हो रहे हैं, ठीक है. ओके, हमने यहाँ पे क्या बोला, व्हेन द यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, यानी कि हम स्पेशली इलेक्ट्रॉन की ही बात कर रहे हैं. और ये इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होके कहाँ जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होगा और जाएगा. ओके, सो व्हेन द यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, ओके, तो यहाँ पे क्या मान सकते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आए, नेगेटिव टर्मिनल से आए, यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट में गए और इलेक्ट्रोलाइट से कहाँ पहुंचे, पॉजिटिव टर्मिनल पे. ओके, सो when unit positive charge moves from negative to positive terminal of the cell due to, अब देखना ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉन कैसे गए, अपने आप नहीं गए, ठीक है. यहाँ पे क्या होता है कि पूरी प्रोसेस होती है, आपको पता है कि नेगेटिव टर्मिनल पे से या नेगेटिव टर्मिनल के साथ जो भी आयनिक प्रोसेस होगी वो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कुछ नेगेटिव चार्ज मान लेते हो, जैसे कि आपने CuSO4 वाला देखा होगा, तो SO4 2 माइनस क्रिएट हुआ. ओके, और ये SO4 2 माइनस कहाँ गए, मान लेते हैं कि ये जिंक का इलेक्ट्रोड है तो जिंक पे गए, तो ZnSO4 यहाँ पे प्रोड्यूस होता है. ओके, सो नेगेटिव चार्जेस आर मूव्ड फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल बाय नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स. ये जो इलेक्ट्रॉन मूव हुए हैं वो बाय केमिकल फोर्स से गए हैं. कौन से फोर्स से गए हैं, केमिकल फोर्स से गए हैं. ओके, विच इज नॉट इलेक्ट्रिक फोर्स. ये कौन सा फोर्स नहीं है, इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं है. ओके, so when the charges is moving from negative terminal to the positive terminal by non-electric force, okay, and the energy gained by the charge, अब उसके पास जो एनर्जी मिली या बची, ओके, यानी कि उसके पास कुछ एनर्जी थी, that is why it is moved from negative terminal to positive terminal. Without energy no process can be happen, as you know that. okay, अब पॉजिटिव टर्मिनल पे पहुंचने के बाद उसके पास जो एनर्जी गेन हुई, दैट इज सो कॉल्ड द EMF ऑफ द सेल. ठीक है, और उसे कैसे इंडिकेट किया जाता है, एप्सिलॉन से इंडिकेट किया जाता है, वो हमें पता है. एप्सिलॉन इज नॉट फोर्स बट इट इज पोटेंशियल डिफरेंस. नाम भले उसके अंदर क्या आता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. ओके, कीप इन माइंड, बट दैट इज नॉट फोर्स. और हमने अभी बात भी की, ओके, क्या बोला कि द एनर्जी गेन्ड बाय
the negative charge from to move from negative terminal to positive terminal, and when they reached or when it reached, okay, and it is reached by non-electric force, ठीक है, तो वो फोर्स से मूव हो रहा है और जो एनर्जी बची उसकी बात कर रहे हैं हम. ओके, सो दैट इज एनर्जी. मोर एवर इट इज पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, तो क्या नहीं है एप्सिलॉन. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नाम भले है बट वो फोर्स नहीं है. नाम भले फोर्स है, फोर्स नहीं है. वो क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है. वो ध्यान रखना, ठीक है. ओके, चलिए. द कंसीडर रेजिस्टेंस R इज कनेक्टेड टू द सेल एज शोन इन फिगर. जैसा हमने देखा, क्या लगाया था वहां पे? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया हुआ था. ओके, एंड इन रेजिस्टर, इन दैट रेजिस्टर करंट I is flowing C से D की डायरेक्शन में. ओके, नीचे ये भी बताया था, इलेक्ट्रोड के पास क्या बताया था? P and N बताया था, और रेजिस्टर्स के ऊपर हमने क्या इंडिकेट किया था? C और D, यानी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर क्या जा रहा है? करंट फ्लो हो रहा है. वो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया. ठीक है. ओके, सो इन इलेक्ट्रोलाइट steady current flows from negative terminal to positive terminal P, and in resistance current flows from P to N. ठीक है, यानी कि एक्चुअली इलेक्ट्रोड कहाँ से कहाँ गए? मैंने आपको बताया, नेगेटिव टर्मिनल से कहाँ गए? पॉजिटिव टर्मिनल पे गए. और करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो हुआ? पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर. ओके, यानी कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, बीच में भी बताया था, और फिर से बता रहा हूँ कि चार्जेस की मोशन, यानी इलेक्ट्रॉन की मोशन हमेशा जिस डायरेक्शन में होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही करंट फ्लो होता है. ओके, यानी इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव होंगे उस डायरेक्शन में करंट कभी मूव नहीं करता है, उसके अपोजिट ही मूव करता है. ठीक है. सो in electrolyte the electrons or negative charges are moving from negative terminal to positive terminal, whereas the current is flowing from positive terminal to negative terminal. ठीक है. ओके, चलिए. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओके, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I is equals to V by R. ये फॉर्मूला नॉर्मल है. ओके, V अपॉन इनफाइनाइट क्यों लिखा है ये समझ रहा है. When T ओपन कंडीशन, ओपन कंडीशन को क्या बोलते हैं? कि जब कोई भी करंट पास नहीं हो रहा है या दोनों ही टर्मिनल ओपन है. ठीक है, दोनों जुड़े नहीं है, तो उनके बीच में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस बोला जाता है ओपन कंडीशन. ठीक है. सो करंट फ्लो नहीं होगा. ओके, सो V इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड N. ठीक है, V क्या है? पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है. तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहो तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हो ये देखना. ओके, सो V इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड A, यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो है आपका वो और पॉइंट A के बीच का. फिर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, A और B के बीच का, और पोटेंशियल डिफरेंस B और N का. ओके, ये सब जोड़ दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा. ठीक है. अब जैसे कि पता है कि पॉजिटिव टर्मिनल का कितना है? V प्लस. नेगेटिव टर्मिनल क्या क्या है? V माइनस. और A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? V इज इक्वल टू IR के हिसाब से होगा. माइनस आया क्यों? ये आपको सवाल होगा. ओके, बट करंट की डायरेक्शन और फ्लो की डायरेक्शन अपोजिट है, सो दैट इज व्हाई वी हैव पुट द माइनस IR. अब इसे अरेंज कर देते हैं, इसको यहाँ पे लिख देते हैं. ओके, सो V प्लस प्लस V माइनस माइनस IR. अरेंज कर दिया. क्यों? ये इक्वेशन हमें पता है, V प्लस प्लस V माइनस दैट इज एप्सिलॉन. ओके, दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. सो देयरफॉर V इज इक्वल्स टू, आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे मैंने बता दिया, E इज इक्वल्स टू V प्लस प्लस V माइनस. सो V इज इक्वल्स टू, इसके जगह पे, किसकी जगह पे? इसकी जगह पे क्या आ गया? एप्सिलॉन. क्या आ गया? ये वाला एप्सिलॉन आ गया. ओके, सो V इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं? E माइनस IR. ये बचा हमारा. ठीक है, तो V इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन माइनस IR. टोटल इक्वेशन तैयार हो गया. ओके, पता चल रहा है ना?
ओके, इन ओपन कंडीशन जैसा मैंने बताया, ओपन कंडीशन में क्या होता है, I इज इक्वल्स टू 0, क्या होगा, I इज इक्वल्स टू 0 होगा। अगर I इक्वल्स टू 0 है तो V इक्वल्स टू E हो जाएगा। क्यों, आपका फॉर्मूला क्या था, आपने फॉर्मूला बनाया V इज इक्वल्स टू E माइनस IR। ओके, जनरली हम IR ऐसे लिखते हैं, बराबर, बट यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं A और B के बीच की, हमारी फिगर ऐसी थी, एक टर्मिनल, ये दूसरा टर्मिनल, यहाँ पे पॉइंट A था और यहाँ पे पॉइंट B था। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B की बात हो रही है, वो कहाँ है, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर है। ओके, और इलेक्ट्रोलाइट का जो रेजिस्टेंस है दैट इज सो कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस एंड दैट इज इंडिकेटेड बाय द स्मॉल r। किसके द्वारा इंडिकेट किया जाता है, स्मॉल r द्वारा। ओके, सो वी हैव प्रूव्ड दिस इक्वेशन V, potential difference between two electrodes, that is equals to E minus IR, and in open condition we have derived I क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ पे 0 रख दोगे तो V is equals to क्या आ जाएगा, E आ जाएगा। ठीक है, so that is why in open condition क्या होगा, I is equals to 0 and V is equals to epsilon हो जाएगा। ठीक है, okay, thus the epsilon is potential difference between positive and negative electrode। ठीक है, so if R the infinite resistance of the circuit, then potential difference between P and N is called V is equals to E minus IR। okay, so if R क्या है, infinite है यानी open condition है of the circuit, then potential difference between P and N, so अगर R finite है, infinite तो हो गया, okay, अगर R क्या है, finite है यानी कोई फिक्स अमाउंट का रेजिस्टर है, okay, तो करंट फ्लो होगा, तो अब जो हमारा टारगेट है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू E माइनस IR इक्वेशन हमने डिराइव किया हुआ है। ओके, एंड प्रैक्टिकली E इज ग्रेटर देन IR, यानी कि जो एनर्जी मिलती है, ओके, E दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन IR बहुत ही छोटा होता है। ओके, सो दैट इज व्हाई वी आल्सो कैन नेग्लेक्ट इट। ओके, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होती है 0.5 या उससे भी कम होती है, बराबर, और करंट उसमें से जब पास होगा तो वो वैल्यू जो EMF है उसके सामने बहुत ही छोटी हो जाएगी। सो दैट इज व्हाई वी कैन नेग्लेक्ट द इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, सो फॉर द डिफरेंट सेल द इंटरनल रेजिस्टेंस हैज डिफरेंट वैल्यू। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द ड्राई सेल आपके लैब में होगा, एक बड़े से कंटेनर के अंदर एक कार्बन का रॉड उसके अंदर डाला होता है, दैट इज कॉल्ड ड्राई सेल। ओके, एज लार्ज कंपेयर टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यानी कि कोई भी केमिकल लिक्विड फॉर्म में जो बनाया होता है और उसके अंदर हम 2 इलेक्ट्रोड रखते हैं, उसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। ओके, सो इन दोनों में ड्राई सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। ठीक है, when the current I is flowing through the R, then potential difference between two end of the resistance V is equals to IR according to Ohm's law। ठीक है, तो इन दोनों को हम कंपेयर कर देंगे। ठीक है, क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू Ohm's law V is equals to IR है, और यहाँ पे बैटरी के लिए हमने क्या लाया, V is equals to E minus IR लाया। ओके, तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे इक्वेशन 2 और 3 को, तो हमारे पास क्या आएगा, IR is equals to epsilon minus IR। इसको इधर ले आओ, I कॉमन आ जाएगा। ठीक है, क्या होगा, I कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या, I कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा, R प्लस स्मॉल r। ठीक है, और इधर क्या बचा, दैट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन खाली। ओके, तो करंट का इक्वेशन क्या बना, देयरफॉर I is equals to epsilon upon R plus small r। क्वेश्चन बना करंट का,
ओके, पता चला? दैट इज व्हाई वी कैन राइट दैट I is equals to epsilon upon R plus R. होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, आशा करता हूँ समझ में आ रहा है। और आगे बढ़ते हैं, हल्का सा इसका क्लैरिफिकेशन बाकी है और फिर ये खत्म हो जाएगा। ओके, व्हेन द R is equals to 0, यानी कि आउटर रेजिस्टेंस ओके क्या है? 0, द मैक्सिमम करंट फ्लो थ्रू द सेल। ओके, I max is equals to epsilon upon R। ठीक है, देखना फिर से मैं इक्वेशन लिखता हूं जिससे आपको क्लियर होगा ये चीज। आपको ऐसा होगा कि सर R इक्वल्स टू 0 कर देंगे तो ओपन कंडीशन ही हो जाएगा। ओके, मैं कौन सी इक्वेशन की बात कर रहा हूं देखना ध्यान से। जस्ट वी हैव डिराइव I इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन R प्लस स्मॉल r। ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर अगर R क्या है? 0 है, ये क्या हो गया? 0 हो गया। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगा? I इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन स्मॉल r, ये जो हमने डिराइव किया अभी जस्ट। ओके, और उस कंडीशन में क्या कहा जाता है कि द करंट इज मैक्सिमम फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। ओके, भले ये आइडियल वैल्यू है, आइडियल कंडीशन है, ये कर भी सकते हैं, कैसे कर सकते हैं वो फ्यूचर में हम देखेंगे, बट फॉर वाइल यहाँ पे अगर R इज इक्वल टू 0 है तो करंट जो पास हो रहा है सर्किट से या बैटरी से वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। सो आपको क्या कंडीशंस याद रखनी है वो देख लो यहाँ से, जो न्यूमेरिकल के अंदर खास यूज होती है। ये कंडीशन I max कब होगा? ठीक है, जिसके ऊपर से न्यूमेरिकल आता है। और when cell is not in use, यानी कि ओपन कंडीशन भी बोल सकते हो, ये दोनों चीजें। ओके, सेल इस्तेमाल नहीं हो रहा है या फिर ओपन कंडीशन है यानी कि दोनों टर्मिनल उसके ओपन है, तो वहां पर आपका फॉर्मूला फिक्स है V is equals to E। ओके, when the cell is in use, cell is in use को क्या कहा जाता है ये समझिए, ये बोला जाता है डिस्चार्जिंग। क्या बोला जाता है? डिस्चार्जिंग। यानी कि जब बैटरी इस्तेमाल हो रही है, आपने देखा होगा कि कोई भी फ़ोन की बैटरी है या घड़ी की बैटरी है, कोई भी जब वो इस्तेमाल हो रही है तो लगातार उसका पोटेंशियल घटता रहता है, धीरे धीरे वो ख़त्म होता है। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द डिस्चार्जिंग व्हेन द सेल इज इन यूज। ओके, और तब की कंडीशन क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस और उसका जो टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज को V बोला जाता है। ओके, और एप्सिलॉन को क्या कहा जाता है? EMF कहा जाता है। तो EMF उसका क्या होता है? बड़ा होता है। और इसको उल्टा कर दोगे, ओके, अब अगर आप क्या करते हो इसको उल्टा, तो तब क्या बोला जाएगा? सेल इज बीइंग चार्ज्ड। सिंपल सी बात है कि अगर आप बाहर से जो बैटरी लगा रहे हो वो 10 वोल्ट की है और उसका EMF 7 वोल्ट है अगर, तो ही वो क्या होगा? चार्ज होगा। ओके, यानी कि जिस बैटरी को आपको चार्ज करना है उससे ज्यादा वोल्टेज देने होंगे तभी वो क्या करेगा? चार्ज होगा। सिंपल सी बात है। ओके, अगर EMF आपका 7 वोल्ट का है और आप एक्सटर्नल बैटरी जो लगा रहे हो वो 5 वोल्ट की लगा रहे हो, तो क्या वो 5 वोल्ट में से 7 वोल्ट खींचेगा? नहीं, उल्टा ऊपर ये इसको चार्ज करना शुरू कर देगा। ठीक है, सो दैट इज द डिफरेंस। ओके, और जब भी चार्जिंग प्रोसेस होती है तो फॉर्मूला उसका पलट जाता है और इसी के बेस्ड न्यूमेरिकल भी आते हैं। when you are using the V is equals to E minus IR and when V is equals to E plus IR। ओके, तो अगर याद रखिए आउटर बैटरी जो है, ओके, या टर्मिनल वोल्टेज जो है वो आप कैलकुलेट करते हो और वो EMF से ज़्यादा आ रहे हैं तो ही वो चार्ज होगा। अगर कम आ रहे हैं तो वो आप क्या होगा? डिस्चार्ज होगा। ओके, ये याद रखना। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बैटरी का सीरीज कनेक्शन देख लेते हैं टेक्निकली।
ये जो पॉइंट है सीरीज पैरेलल कनेक्शन अकॉर्डिंग टू बोर्ड गाइडलाइन नहीं है, ओके, बट फिर भी शायद JEE में या कहीं 2-3 न्यूमेरिकल जो है वो इंटरकनेक्टेड है जो मुझे आपको सिखाने हैं। इसके लिए मैं आपको सीरीज कनेक्शन समझा देता हूँ। PDF में मैंने पैरेलल कनेक्शन भी दिया हुआ है, ओके, और मिक्स्ड कनेक्शन भी दिया हुआ है, बट यहाँ पे उसे इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। आपको जब टाइम मिले तो आप उसे देख सकते हो और सॉल्व कर सकते हो खुद, ओके। चलिए तो सीरीज कनेक्शन देख लेते हैं। पहले सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, सीरीज कनेक्शन क्या होता है। जैसे ही आपने रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट किया था, वैसे ही आप एक एंड को दूसरे एंड के साथ, दूसरे एंड को तीसरे एंड के साथ और लगातार बैटरियां कनेक्ट करके सीरीज कनेक्शन क्रिएट कर सकते हो। बट हियर बैटरी इज अ पोलर डिवाइस, यानी बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होते हैं, ओके। तो आपको कैसे कनेक्शन करना है, आप 2 तरीके से कनेक्शन कर सकते हैं, ध्यान से देखना। बैटरी का सिंबल कुछ ऐसा मैंने बताया आपको, जस्ट ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है। ऐसे ही दूसरी बैटरी होगी, ठीक है, तो दूसरी बैटरी का भी पॉजिटिव टर्मिनल होगा, नेगेटिव टर्मिनल होगा, ठीक है। तीसरी बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव, ऐसे लगातार इस तरीके से बैटरियां अगर जुड़ती जाएंगी, ओके, तो इसे सीरीज कनेक्शन कहा जाता है। नॉट नेसेसरी, आप इसे उल्टा भी कर सकते हो, ठीक। कैसे? जैसे पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, अब क्या लगाया, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। फिर क्या लगाया, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, ऐसे भी लगा सकते हो, ओके। सो दिस इज अपोजिंग कंडीशन, ये क्या कहा जाता है, अपोजिंग कंडीशन कहा जाता है। और ये क्या आ जाता है, कंस्ट्रक्टिव या फिर सपोर्टिव, ओके। सो दैट इज द कनेक्शन ऑफ द बैटरी, जो यहाँ पर डिस्कस नहीं है, फिर भी मैंने आपको बता दिया। कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल में हम इस फंडामेंटल का यूज करने वाले हैं, दैट इज वाई, ओके। चलिए तो अब पहले डेफिनेशन लिख देते हैं। व्हेन द टर्मिनल, one terminal of the cell connected with the each other and another terminal of each cell are kept free, then such connection is called the series connection, ठीक है। जैसे आपके पास एक बैटरी है, ये आपकी एक बैटरी हो गई, ओके। तो अब इसके साथ आपको दूसरी बैटरी लगानी है, तो आप क्या करोगे, ये लगा दिया तो दूसरा एंड फ्री हो गया, ठीक है। जितनी बैटरी लगाते जाओगे वहां पर एक टर्मिनल तो क्या रहेगा, फ्रीज रहेगा, ओके। दैट इज कॉल्ड द सीरीज कनेक्शन, ओके। चलिए यहाँ पे मैंने इंडिकेट कर दी है कि पॉइंट ए से लेकर बी के बीच में एक बैटरी लगाई और बी से लेकर सी के बीच में एक बैटरी लगाई है। अब मुझे क्या करना है कि 2 बैटरी की जगह मुझे एक ही बैटरी को कनेक्ट करना है और दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना होगा, और दैट इज इंडिकेटेड एज आर इक्विवेलेंट। और दोनों बैटरी का ईएमएफ कितना होगा, दैट इज इंडिकेटेड बाय ई इक्विवेलेंट, ओके। और इनके बीच में मुझे जो रिलेशन है वो डिराइव करना है, ठीक, ओके। सो here as shown in the figure, the 2 batteries of the EMF E1 and E2 with the resistance, internal resistance R1 and R2 is connected in series connection between A and B. First battery is connected, B and C, second battery is connected, okay. In the figure, battery having the EMF E1 and the internal resistance R1 is connected between A and B. आपने देखा, okay. And same way बैटरी विद द EMF E2, दिस इज E2, एप्सिलॉन 2 भी बोल सकते हो। इंटरनल रेजिस्टेंस का कितना है, R2, दैट इज कनेक्टेड बिटवीन B एंड C, ओके। याद रखना किसके बीच में कौन जुड़ा है। नाउ लेट द इक्विवेलेंट EMF ऑफ A एंड C, A से C तक के बीच में जितनी भी बैटरियां जुड़ी हैं उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने बोल दिया इक्विवेलेंट। एंड R1 एंड R2 यहाँ पे 2 ही लिए हैं, सो R1 एंड R2 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट कुछ इस तरीके से हम इंडिकेट करेंगे जो यहाँ पे बताया गया है,
ठीक है, यानी कि ये क्या है, जितने भी इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी के जुड़े हैं उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, और जितनी भी बैटरियां जुड़ी हैं सबका इक्विवेलेंट ईएमएफ ई, कैपिटल ई इक्विवेलेंट से यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। ठीक है, ओके, चल आगे बढ़ते हैं। लेट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द पॉइंट ए बी सी, उसको कैसे इंडिकेट किया है, वी ए वी बी एंड वी सी से इंडिकेट किया है। Potential difference between the positive and negative terminal of the first cell, पहली बैटरी की बात हो रही है। ओके, सो दैट इज VAB, VA minus VB, simple। ओके, and the potential difference between of the second battery, यानी कि positive and negative terminal of the second cell, that is VBC, VB minus VC। ओके, यहाँ पे इस माइनस निशानी बहुत छोटी है तो 2 लगाई हुई है। चलिए, तो VA माइनस VB क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला V इज इक्वल टू E माइनस IR, अभी बनाया है हमने। सो उसका EMF E1 है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस फर्स्ट बैटरी का R1 है। सो एप्सिलॉन 1 माइनस IR1। सेम टू सेम सेकेंड बैटरी के लिए हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज द E2 या एप्सिलॉन 2 माइनस IR2। ओके, चलिए, सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A टू C, फर्स्ट टू सेकेंड लास्ट तक का कितना होगा, सो सिंपली यू कैन इंडिकेट एज VAC इक्वल्स टू VAB प्लस VBC। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जो A से C तक का है वो क्या करूँगा, मैं VAB और VBC दोनों को जोड़ दूंगा, उतना बनेगा। याद कीजिए सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, पोटेंशियल बढ़ जाते हैं। ओके, पोटेंशियल बढ़ जाते हैं, क्या कॉमन रहता है, करंट कॉमन रहता है। ओके, सो ऐसा नहीं होना चाहिए सर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, या फिर यहाँ पे माइनस क्यों नहीं किया, सीरीज कनेक्शन है तो V1 और V2 टोटल V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 है फॉर्मूला, वही यहाँ पे लागू किया है। अब VAB का फॉर्मूला हमने तैयार किया हुआ है, दैट E1 माइनस IR1 रख दिया, प्लस का प्लस, और फिर दूसरे का फॉर्मूला क्या है, E2 माइनस IR2। अब क्या किया है, सेम जो लोग हैं, ओके, यानी कि E वाले साइड में रख दिए, E1 प्लस E2, और IR वाले एक साथ कर दिए, सो दैट इज माइनस IR1 माइनस IR2। सो E1 प्लस E2 हो गया, और यहाँ पे I कॉमन निकल के R1 प्लस R2 हो गया आपका। ठीक है, चलिए, सो फॉर द गिवन कॉम्बिनेशन द इक्विवेलेंट EMF ऑफ बिटवीन A एंड C, हम E इक्विवेलेंट से और R को के इक्विवेलेंट को, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस को R इक्विवेलेंट से इंडिकेट करने वाले हैं। ओके, so therefore VAC is equals to VA minus VC, general term, that is what we have derived, that यहाँ पे E1 plus E2 को हम क्या कह देंगे, इक्विवेलेंट, कैपिटल E भी लिख सकते हैं, स्मॉल e, एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं, नो इश्यू, दैट इज योर चॉइस। माइनस I एज इट इज, R1 प्लस R2 की जगह हम क्या लिख देंगे, R इक्विवेलेंट। ठीक है, सो E1 प्लस E2 की जगह इक्विवेलेंट माइनस I, R इक्विवेलेंट, यानी कि R1 प्लस R2 की जगह लिख सकते हो आप। ओके, यानी कि हाउ मेनी अमाउंट ऑफ दी batteries you joined, okay, but all the EMF of that batteries are summate। देख सकते हो आप, 2 बैटरी ली थी, E1 प्लस E2 आया, and the internal resistance of that battery also summate, यानी कि उनके इंटरनल रेजिस्टेंस भी साथ साथ में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, सो यू कैन कंपेयर दिस इक्वेशन। सो E1 प्लस E2 की जगह आपने क्या रखा है, इक्विवेलेंट रखा है, ओके, एंड R1 प्लस R2 की जगह क्या रखा है, R इक्विवेलेंट रखा हुआ है। ओके, सो दैट इज द कंपैरिजन, नथिंग एल्स। सो अगर मैंने n सेल लगा दिए हैं तो क्या होगा, सिंपल, इक्विवेलेंट क्या लिख सकते हो, E1 प्लस E2 प्लस E3 अप टू En। ओके, सिंपल,
एंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn पहुंच जाएगा। ओके, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस का भी समेशन होगा और उनके इंडिविजुअल EMF का भी समेशन। चल, दैट इज द आई थिंक एंड ऑफ द स्टोरी ऑफ दैट टुडेज सेशन। ओके, और मिक्स्ड कनेक्शन भी मैंने और पैरेलल कनेक्शन भी आपको दिया है फॉर स्टडी। ओके, लगभग हमारे गुजरात बोर्ड में ये टॉपिक स्किप कर दिए हैं, सो दैट इज व्हाई आई हैव नॉट इंक्लूड। और आगे के जो टॉपिक है आई थिंक इट ऑल्सो बीन एमिटेड और स्किप्ड। यहाँ पे अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बचता है वो है आपका किरचॉफ लॉ। किरचॉफ के 2 रूल्स अब आपको सीखने हैं और उसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, वैसे ओल्ड सिलेबस या अगर स्किप नहीं करते हैं तो आपके टोटल 3 या 4 टॉपिक बचते हैं, जिसके अंदर आपका पिस्टन ब्रिज आता है। ओके, उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, उसका एप्लीकेशन क्या है वो, और पोटेंशियोमीटर, जस्ट व्हाट वी हैव सीन द EMF ऑफ द बैटरी। अगर EMF मेज़र करना है तो कैसे मेज़र कर सकते हो आप, बाय यूजिंग द पोटेंशियोमीटर, वो आपका प्रैक्टिकल भी है। बट आई थिंक आई विल कन्फर्म बाय द एक्सपर्ट टीचर, एंड इफ इट 100% skipped, then I will not discuss. Otherwise, in the next session, without risk, I will cover that topic. But technically, we have 2 points left, that is the Kirchhoff law. Okay, अगर Kirchhoff law आपको आ जाता है, अगर Kirchhoff law आ जाता है तो मेजरली GW रिलेटेड या फंडामेंटली इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी इक्वेशंस हैं उसमें 30% जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बाय किरचॉफ लॉ सॉल्व कर सकते हो आप। ठीक है, किरचॉफ लॉ के फर्स्ट रूल और सेकेंड रूल कैसे देखा जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट सेशन। बट नेक्स्ट सेशन जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 बार 3 बार देख के उसके रूल्स याद कर लेना और आपको किसी भी तरीके से कहीं से भी अप्लाई करना आना चाहिए। ओके, आई होप you have today enjoyed the session. Take care. Bye bye.